So let us start with this Bessel's equation. And we will solve this Bessel equation using the Frobenius method, right? तो अगर मैं देखूँ एक बार के लिए मेरी Bessel equations क्या होती है? Bessel equation क्या है? Bessel equation reads x square y double dash plus x times y dash plus x square minus nu square y is equals to 0, right? So what I need to do is I need to find out the power series solution of this equation about x equals to 0, right? तो अब यहाँ पे मेरे पास जो ये nu क्या है, the parameter nu is a given number, और इसका सिग्निफिकेंस जो हम थोड़ा सा बाद में जाके देखेंगे, इज अ गिवन नंबर वी चूज, या हम एज्यूम कर लेंगे इसको, वी एज्यूम न्यू इज रियल एंड नॉन नेगेटिव, ये हमारी एजम्पशन है न्यू के ऊपर जो है, राइट? तो चलो लेट अस स्टार्ट सोल्विंग दिस इक्वेशन यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड. सो नाउ दैट मुझे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है जिसके अबाउट मुझे इस बेसल इक्वेशन को सोल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू सोल्व दिस इक्वेशन अबाउट x इक्वल्स टू 0. सो इट इज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू चेक that x equals to 0 is a regular singular point of this differential equation. If I'll ask you this about the singular point of this equation are given by the singular points of this equation are given by px, yani the coefficient of the highest order differential term, which is x square in our case equals to 0, या मैं कह दूं this implies the singular point is x equals to 0. And now it is an exercise for you to check this indeed is a regular singular point. Is a regular singular point. So we can apply the Frobenius method about this point. So what I'll do is I'll assume that let y is equals to x raised to the power m summation n runs from 0 to infinity a n x raised to the power n, right? For some m, कि किसी m के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास जो है सॉल्यूशन है इट हैज दिस फॉर्म जो कि हम मानते थे, सो दैट y डैश किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, y ऑफ डैश विल बी इक्वल्स टू summation n runs from 0 to infinite m plus n runs from 0 to infinity m plus n a n x raised to the power m plus n minus 1. बिकॉज जब मैं x की पावर m को अंदर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा, x की पावर m plus n. So when we'll take the derivative we have m plus n times a n x raised to the power m plus n minus 1, and y double dash will be an expression of the form, it goes summation n runs from 0 to infinite, we have m plus n minus 1 times m plus n a n x raised to the power m plus n minus 2, right? So if I'll name this equation as 1, right, and I'll obtain all these three expressions, I'll name them as expressions 2. So now जैसा कि हम अब तक करते आए, I'll substitute the values of y, y dash and y double dash from equation 2 into 1. So now substituting the values of y, y dash and y double dash from 2 into 1. तो जब मैं इसकी वैल्यू प्लग इन कर दूंगा तो मेरे पास एक्सप्रेशन किस तरह का बन जाएगा. सो द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन विल बी, मैं एक बार के लिए वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर इंटू
वाई डबल डैश, राइट। तो जो मेरे पास पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई डबल डैश, बिल्कुल ठीक बात। तो मेरे पास क्या हो जाने वाला है, ठीक बात है, लिखो समेशन एन रन्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, राइट। So we have x square in here and y double dash is this expression. So when I'll multiply x square with this y double dash, we have how many powers of x are there? M plus n minus 2, and 2 powers will add up because of this x square. So we are left with summation n runs from 0 to infinity. We have m plus n times m plus n minus 1 into a n x raised to the power m plus n. Right, we have minus 2, but because of we also have plus 2 because of this x square multiplied with this expression, plus फिर क्या है हमारे पास, प्लस समेशन n runs from 0 to infinity. So now we have x multiplied with first order derivative of y. So in the first order derivative of y, what we have x raised to the power m plus n minus 1, and if we'll multiply it with x, we again have powers of x की powers कितनी हो जाएंगी, m plus n as power of x, right? So what we have, summation n runs from 0 to infinity, we have m plus n times a n x raised to the power m plus n. Now in the last term, when I'll substitute the value of y, I'm going to split this into two expressions, right? तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस summation n runs from 0 to infinity. What we have, x square into y. The value of y is x raised to the power m times summation n runs from 0 to infinity a n x raised to the power n, right? So what this expression will be, summation n runs from 0 to infinity a n times x raised to the power m plus n plus 2, right? Because we have x square into y, and the last term is minus new square summation, and we have new square into y. The value of y will plug in from equation number 2. So we have summation n runs from 0 to infinity a n x raised to the power m plus n, and the right hand side we have this expression equals to 0. So now if I am to look at this equation, so now we have x की power m plus n. In this term also we have x raised to the power m plus 1, and so is in this last expression. So the only concern is this term, right? So what I'll do, I'll make some substitution. तो मैं क्या कर देता हूँ, now I'll put n equals to, now I am substituting n equals to s minus 2 in third term. Now I'll put n equals to s minus 2 in third term. सो दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या हो जाएगा कि पहली टर्म में तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आई ऑलरेडी हैव एक्स रेज़ टू द पावर m प्लस n, सेकंड में भी एंड फोर्थ में भी, तो बाकी की टर्म तो मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, जिसमें चेंज होगा आई विल राइट डाउन दैट टर्म इन रेड. सो द ओनली चेंज इज इन दिस टर्म, राइट? आई एम अंडरलाइनिंग इट विद द रेड एक्सप्रेशन. तो अब मेरे पास क्या हो जाने वाला है, फर्स्ट टर्म तो मेरी एज इट इज़ ही रहने वाली है. सो आई विल राइट इट एज समेशन n runs from 0 to infinite. We have m plus n. I am just writing it down because इसमें कोई change ही नहीं है. n minus 1 into a n x raised to the power m plus n. Second term, there is no change in this expression also. n runs from 0 to infinity. This is m plus n times a n x raised to the power m plus n. Now there is some change, right? So I'll write this term in red expression. So what we have plus. Now what we do, we'll replace this n with s minus 2. जहाँ पे भी n देखूंगा वहाँ क्या कर दूंगा, s minus 2. So when s minus 2 runs from 0, n को जब s minus 2 से कर दूंगा तो मेरा s कहाँ से रन करेगा. So now what we have this expression where this s will run from 2 to infinite, right? और जहाँ पे भी n देख रहा हूँ वहाँ पे क्या रख रहा हूँ, s minus 2 से रिप्लेस कर रहा हूँ. So what it will be, a s minus 2 x raised to the power m plus, जहाँ पे भी n है वहाँ क्या कर दिया, s minus 2 plus 2, right? And there is no change in the last expression. So I am writing in it white. X summation n runs from 0 to infinite
a n x raised to the power m plus n and this expression is equals to 0, राइट. अब अगर मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन कटता है, ये -2 मेरा +2 से चला जाएगा, राइट. और मैं क्या कर दूं, नाउ आई एम रिप्लेसिंग दिस s विद n. ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो स्टेप एक साथ कर रहा हूँ बेसिकली. अब मेरी सारी पावर्स कैसी होगी, x की पावर m प्लस n फाइन विद दिस टर्म, x की पावर m प्लस n फाइन विद दिस टर्म, एंड सो इज विद दिस टर्म एंड दिस टर्म. सो एवरीथिंग लुक्स गुड टू मी. सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म कर रहा हूँ एंड आई एम रिप्लेसिंग, एंड इन द प्रोसेस I will replace this s with n, right? Because this n is this s is mere an index, and जो हमारा expression है वो कैसा है, that is free, that is independent of this index. मैं x की जगह p, q, r, n कुछ भी ले लूँगा तो it doesn't make any difference. So what I am doing is, now I am rearranging terms and replacing s to n, और s को मैंने n से रिप्लेस कर दिया इन द प्रोसेस. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो अब मैं थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, कोई टर्म मिस कर जाए तो मुझे बताना. सो अब मेरे पास होगा क्या, नाउ दिस समेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 2 एंड बाकी के सारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे पास, n इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. तो मैं क्या करूंगा, n इक्वल्स टू 0 के लिए टर्म्स अलग निकाल लूंगा, जब n इक्वल्स टू 1 के लिए होगा वो टर्म्स अलग क्लब कर लूंगा, एंड देन व्हेन ऑल समेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 2 उन सबको एक साथ क्लब करके मैं लिख लूंगा. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सो पहले मैं क्या कर लेता हूं, वो टर्म्स लिख लेता हूं जहां पे सारी की सारी मेरे पास स्टार्ट होंगी 2 to infinite, राइट. सो व्हाट इट विल बी, सो द फर्स्ट टर्म विल बी m प्लस n, थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन आने वाला है तो अपने को ध्यान रखना है. समेशन n रन्स फ्रॉम 2 to infinity m प्लस n माइनस 1 a n x रेज टू द पावर m प्लस n को बाहर कॉमन ले लूँगा, राइट. सो व्हाट वी हैव m प्लस n माइनस 1 इंटू a n. सो पहली टर्म होगी. सेकेंड टर्म इज m प्लस n टाइम्स a n, तो क्या हो जाएगा, प्लस m प्लस n टाइम्स of a n, right, plus next term, third term, now I am replacing this s with n. So what we have, n minus 2 into x raised to power m plus n को बाहर ले लेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, प्लस a n minus 2, and in the from the last term what we'll get is minus nu square a n, right, and we will multiply it with x raised to the power m plus n. Here n runs from 2 to infinity, right. तो अब मैंने क्या कर दिया, सारे समेशन 2 वाली टर्म तो लिख ली, अब 1 वाली टर्म्स फैच कर लेता हूँ. 1 की करस्पॉन्डिंग टर्म्स फैच करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, और जब मैं n इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग कर रहा हूँ तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा, x रेज टू द पावर m प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, यानी n इक्वल्स टू 1 वाली टर्म. और फिर थर्ड टर्म में मैं क्या करूँगा, n इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग वाली टर्म्स को क्लब करके लिख लूँगा, जो राइट. तो चलो देखो कैसे बढ़ते हैं हम आगे. हेलो, हाँ जी, कहाँ से मैम अभी मेरी क्लास है, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करूँ मैम इसी फ़ोन पे. Well, so now I have collected the terms, all terms when this n varies from 2 to infinity. So now I am collecting the terms corresponding to the value n equals to 1, and the terms are मेरे पास हो जाएगा m plus 1, देखते जाना मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, into m, because now I'll substitute n equals to 1. So we have m plus 1, so we have m plus 1 minus 1 is 0, so this is m plus 1 into m a1 x रेज टू द पावर m प्लस 1. सो मैं इस x की पावर m प्लस 1 को क्या करता हूँ, बाहर कॉमन ले लूँगा x की पावर, क्योंकि लास्ट में मुझे इनके कोफिशिएंट ही तो उसको करने हैं. सो आई विल कीप दिस, ओह शिट, I will erase simply this x, right.
सो मेरे पास क्या हो गया, m प्लस वन इंटू एम ए वन, एक्स की पावर m प्लस वन हम बाहर ले लेंगे, प्लस from the second term, the expression from the second term, we have m plus 1 a1 x raised to the power m plus 1 फिर से बाहर ले लूँगा, and finally we have minus nu square a1 and I will take x raised to the power m plus 1. So this is the term which corresponds to n equals to 1, right? And the last term which I'll get corresponding to n equals to 0 is, अब मेरे पास जब n को 0 लूंगा तो क्या होगा, x की पावर m प्लस n है, n को जब 0 लूंगा तो नहीं, x की पावर m की टर्म्स में क्लब कर रहा हूँ. सो व्हाट वी हैव समेशन m इंटू m माइनस वन ए नोट x की पावर m, उसको मैं बाहर कॉमन ले लूंगा, तो प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास m इंटू ए नोट x की पावर m, उसको बाहर मैं फिर से कॉमन ले रहा हूँ, माइनस न्यू स्क्वेयर ए नोट एंड व्हाट वी हैव x raised to the power m equals to 0, right? So we have this expression. So if I am to look at this expression, कि मैंने क्या किया कि समेशन मेरा 2 से स्टार्ट हो रहा था, तो सारों के 2 वाली टर्म्स तो एक साथ क्लब कर लिए, ठीक बात. और जो मेरी टर्म है ये वाली टर्म, if I'll underline it with blue, right? So this is the term which corresponds to the value n equals to 1, right? And if I'll underline this term with this green, so this indeed is the values which corresponds to n equals to 0, right? और n कहाँ था मेरा, 0 से इन्फिनिटी रन करता था, तो 0 के करस्पॉन्डिंग क्या है, टर्म अलग लिख ली, n इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग अलग लिख ली, और 2 से इन्फिनिटी के लिए एक साथ क्लब करके मैंने अपनी सारी की सारी टर्म्स जो है लिख ली है. अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को जो करना था मैं कर चुका. अब मुझे एक बात पता है कि मुझे एक तो इंडिशियल इक्वेशन चाहिए जो किसके बराबर होती है, इंडिशियल इक्वेशन इज नथिंग एल्स बट द कोफिशिएंट ऑफ द लोएस्ट डिग्री टर्म, जो क्या है मेरे पास, x रेज़ टू द पावर m. और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो मेरे पास क्या क्या टर्म्स आ रही हैं, x की पावर m की, x की पावर m प्लस 1 की, एंड x की पावर m प्लस n की, व्हेन n रन्स फ्रॉम 2 3 एंड सो. सो द लोएस्ट डिग्री टर्म इज दिस वन, राइट, विच वाज अंडरलाइंड बाय द ग्रीन, राइट. सो इक्वेटिंग टू 0, अब मैं क्या कर देता हूं, नाउ I am equating to 0 the coefficient of lowest power of x, lowest degree term in x, right? तो वो मुझे क्या देगा, इंडिशियल इक्वेशन, और वो मेरी इंडिशियल इक्वेशन मुझे क्या मिल गई, जो मेरी इंडिशियल इक्वेशन मुझे मिली मेरे भाई, वो मुझे मिली, ए नोट कॉमन ले लूँ भाई, इसमें ए नोट यहाँ पे भी है, ए नोट यहाँ पे भी है, ए नोट यहाँ पे भी है, तो मैं अगर उसको एक बार के लिए बाहर भी लिख लूँ तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, ए नोट, इंडिशियल इक्वेशन क्या मुझे मिलेगी, ए नोट एम इंटू एम माइनस वन प्लस एम माइनस न्यू स्क्वेयर, राइट. दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 0, राइट, जब उसके कोफिशिएंट को किया. अब नाउ दिस ए नोट कैन नॉट बी 0, राइट, कि हम बाद में जाके हम देखते हैं कि अगर हमारा ए नोट 0 हो गया तो विल अराइव एट द ट्रिवियल सॉल्यूशन, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. सो नाउ ए नोट कैन नॉट बी 0, सो दिस इंप्लाइज व्हाट वी गॉट इज m स्क्वेयर माइनस m प्लस m. सो ये क्या बन गया, दिस इंप्लाइज, अगर मैं इसको खोल के लिखूं या मैं इसको ऐसे लिख लूं, अगर मैं एक स्टेप और लिख लेता, सो व्हाट वी हैव, ए नोट m स्क्वेयर माइनस m प्लस m माइनस न्यू स्क्वेयर इंटू this equals to 0, right? So this term will cancel out with each other. So what does this implies? This implies that this m square should be equals to न्यू square. और या मैं कह दूं मेरे पास जो इंडिशियल इक्वेशन है उसके रूट्स क्या मिल गए मुझे, द वैल्यू ऑफ m इज प्लस माइनस न्यू, राइट, कि जो मेरे पास m की जो वैल्यूज मिली मुझे वो क्या मिल गई, प्लस माइनस न्यू मिल गई, राइट. और आई कैन से दैट दिस m इक्वल्स टू m1 इज इक्वल्स टू न्यू, जो हमारे पास नॉन निगेटिव और रियल है, एंड सेकेंड रूट मुझे क्या मिल गया, m इक्वल्स टू m2 विच इज इक्वल्स टू माइनस. ठीक बात, तो ये दो रूट मेरे को मिल गए. अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कोई नंबर दे देता हूँ, मैंने और 2 तक दिया हुआ है तो आई नेम इट एज 3, राइट.
सो नाउ अगेन अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 स्टेप में कोफिशिएंट्स को जीरो इक्वेट कर रहा हूं। पहले में तो मैंने किया लोएस्ट डिग्री टर्म को, या मैं कह दूं x की पावर m के जो कोफिशिएंट्स थे उनको जीरो कर दिया। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल पुट x की पावर m प्लस 1, भाई सबके कोफिशिएंट्स को ही तो जीरो इक्वेट करना है। नाउ आई एम इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर m प्लस 1। नाउ आई एम इक्वेटिंग टू जीरो equating to 0 the coefficients of x raised to the power m plus 1। so यानी मेरे को क्या मिला इस केस में, जब मैंने इसको किया तो एक एक्सप्रेशन मिला, अब मैं इसको जीरो इक्वेट कर रहा हूं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज तो मेरे को क्या मिलेगा एक्सप्रेशन देखो, अब मेरे पास x की पावर m प्लस 1 के कोफिशिएंट्स को जीरो कर दिया, तो व्हाट वी हैव m इंटू, इसी तरीके से a1 को बाहर लिख रहा हूं मैं, राइट। सो मेरे पास क्या हो गया a1, सो मेरे पास क्या हो गया m इंटू m प्लस 1, a1 लिख लिया मैंने, m इंटू m प्लस 1 प्लस, अगर मैं देखूं m प्लस 1 राइट, एंड द लास्ट टर्म इज माइनस न्यू स्क्वेयर, दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट। अब अगर एक बार मैं इसको सोल्व करके लिखूं तो मेरे भाई ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको देखूं सोल्व करके क्या हो जाएगा मेरे पास, m स्क्वेयर प्लस m प्लस 1 माइनस न्यू स्क्वेयर, this into a1 is equals to 0, right? Or I can write it down as, कितना हो गया, m plus m is 2m, so this is basically m plus 1 का whole square। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं, so या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, I can write down this expression as m plus 1 whole square minus new square into a1 equals to 0, right? I can write down this expression as this one। सो नाउ अब मैं क्या क्लेम क्या कर रहा हूं इससे जो है, या चलो अभी के लिए मैं इसको एज इट इज ही लिखता हूं जो है, ठीक बात। ऑल्सो नाउ इन द थर्ड स्टेप आई नेम इट एज इक्वेशन नंबर 4, ठीक बात। नाउ द थर्ड वन इज द लास्ट जो मेरे पास बच गया, सारे के सारे जो समीशन के कोफिशिएंट्स हैं व्हेन दिस n रन्स फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, राइट। अब इसको इक्वेट कर देता हूं, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू द पावर m प्लस n। तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नाउ इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू द पावर m प्लस n, वेयर n कहां से शुरू हो रहा है मेरे पास, 2 3 4 एंड सो सो मेरे पास क्या आने वाला है, देखो एक बार के लिए मैं इसको देख लेता हूं और फिर मैं इसको लिखता हूं, याद रखूंगा मैं इस बात को। तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी जब मैं उसको जीरो को इक्वेट करूंगा, x की पावर m प्लस n तो मैं बाहर ले लूंगा। सो मेरे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो मेरे पास एक्सप्रेशन होगा m प्लस n, एक बार उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हमें दिखता रहे, m प्लस n टाइम्स m प्लस n माइनस 1 इंटू an, m प्लस n माइनस 1 टाइम्स an प्लस m प्लस n an प्लस m प्लस n an प्लस an माइनस 2 प्लस an माइनस 2 माइनस न्यू स्क्वेयर an, इट शुड बी न्यू स्क्वेयर, हाँ न्यू स्क्वेयर ही है, माइनस न्यू स्क्वेयर टाइम्स an, एंड दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल्स टू 0। दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है ऊपर की, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नाउ अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। अगर मैं एक बार के लिए देखूँ क्या मेरी कोई टर्म कैंसल आउट हो रही है, अगर मैं देखूँ तो जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा m प्लस n माइनस 1 इंटू an, सो दिस टर्म द सेकेंड टर्म विल कैंसल आउट, दिस टर्म विल कैंसल आउट विद -1 से जो मल्टीप्लीकेशन के बाद टर्म आएगी। और I can say that I can write down this expression as,
अगर मैं इसको एक बार करूं कैंसल आउट, सो दिस m प्लस एन की प्रोडक्ट विद दिस -1 टाइम्स ए एन, ये क्या हो जाएगी, दिस विल कैंसल आउट विद दिस m प्लस एन ए एन, राइट. तो दिस विल कैंसल आउट विद दिस रेड वन. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज, मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, आई हैव दिस एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, मैं क्या करता हूं, तो m प्लस एन हो जाएगा. मैं यहां से, ठीक है, आई कैन राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन देयर आफ्टर एज इट विल बी m प्लस एन का होल स्क्वेयर माइनस न्यू स्क्वेयर इंटू ए एन, और मैं इस ए एन माइनस टू को कहां ले जाता हूं, आई विल टेक दिस ओवर द राइट हैंड साइड. सो व्हाट इट विल बिकम, माइनस a n minus 2, right? So I'll name this expression as expression number, say like मैंने 4 नंबर दिया था, या मैं इसको और अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, दिस इज a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, राइट. सो आई कैन से दैट दिस इज नथिंग एल्स बट m प्लस n प्लस न्यू टाइम्स m प्लस n माइनस न्यू टाइम्स a n is equals to minus a n minus 2, and I'll name this expression as 5. Now I'll try to solve या solution obtain करने की कोशिश करता हूँ अपनी बेसल इक्वेशन का. अभी जो है मैंने क्या किया कि सारे के सारे जो है अपने कोफिशिएंट जो है उनके बीच में रिकरेंस रिलेशन या जो कुछ अगर मुझे चाहिए था तो वो मैं निकाल चुका हूँ, जो है ठीक बात. तो अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे को इक्वेशन नंबर 3 से जो मेरी लोवेस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को जब इक्वेट किया जीरो को, तो मुझे मेरी इंडिशियल इक्वेशंस के 2 रूट मिले, न्यू और माइनस, राइट. और इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 जो है मुझे कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालने के अंदर मदद करने वाले हैं. तो अब देखो हो क्या रहा है. सो नाउ आई विल कंसीडर द केस. अब मेरे पास क्या है नाउ मैं क्या कर लेता हूं, नाउ व्हेन m इज इक्वल्स टू m1 इज इक्वल्स टू न्यू. अब न्यू के ऊपर गौर करने वाली बात क्या है, न्यू कैसा है मेरे पास, न्यू इज नॉन निगेटिव एंड रियल, यानी ये कोई नॉन निगेटिव रियल नंबर है. अब मेरी सारी की सारी कैलकुलेशन जो है इस न्यू के ऊपर डिपेंड करने वाली है. मैंने कहा मेरे भाई अब मैं जब इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा तो मैं आखिरी में जाके क्या करता था भाई, m के वो रूट्स प्लग करता था. तो मैंने क्या किया, m को न्यू पुट कर लिया. तो अब देखो हो क्या रहा है, देयरफॉर फ्रॉम 4 इक्वेशन नंबर 4 से मुझे क्या मिला, इक्वेशन नंबर 4 से मुझे पता चला कि जब मैंने m को न्यू पुट कर दिया तो मेरे पास क्या हो गया, यानी कि मेरे पास रिलेशन क्या आ जाना चाहिए, न्यू प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस न्यू स्क्वेयर टाइम्स a1 शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट. या मैं क्या कह दूं कि मेरे पास क्या आ जाना चाहिए भाई, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यू स्क्वेयर प्लस 2 न्यू प्लस 1 माइनस न्यू स्क्वेयर इंटू a1 टाइम्स should be equals to 0. So what does this implies? This implies 1 plus 2 new into a1 equals to 0, right? This minus new square will go away with this one, right? अब गौर करो न्यू कैसा है, न्यू इज ए नॉन निगेटिव एंड अ रियल नंबर. तो यानी कि 1 plus 2 न्यू तो कभी भी 0 हो नहीं सकता, राइट. सो बट 1 plus 2 new is not equals to 0. Why? Because new is non-negative, right? So what does this implies? This implies that this coefficient a1 is equals to 0, right? So now if this a1 is equals to 0, so from 3 अब मैं क्या करता हूं, अब सॉरी मैंने क्या 4 का इस्तेमाल किया. नाउ आई एम गोइंग टू यूज इक्वेशन नंबर 5. सो नाउ फ्रॉम 5 also from 5 मेरे पास क्या आया, also from 5 मेरे पास क्या मिलेगा, also from 5 मेरे पास क्या आ जाएगा, also from 5 what we have, this an
अब मैं इक्वेशन नंबर 5 से क्या कर लेता हूं, द कोफिशिएंट्स a n, दिस शुड बी इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस ऑफ a n माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अभी जो मेरा कोफिशिएंट था यहां पे मैंने क्या किया, m को न्यू पुट कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है उसकी वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे m को जब न्यू पुट करूंगा n प्लस 2 न्यू इंटू n, राइट, कि बाकी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस एक्सप्रेशन विल बिकम n प्लस 2 न्यू टाइम्स n, राइट। और अब यहां पे मेरे पास n कहां से वेरी कर रहा है, n वेरीज फ्रॉम 2 3 4 एंड इट गोज ऑन लाइक दिस in this expression 5 this n varies from where, n कहां से होता था मेरे पास समेशन 2 3 4 and it goes on like this, right। तो अब एक बार के लिए मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं odd values चेक करता हूं, when n is equals to 3, when n is equals to 3, right, what we are going to get is I am going to get this a3, so I am going to get this a3 in terms of what, 3 में से 2 गया a, माइनस a1 डिवाइडेड बाय, क्या हो गया मेरे पास, n को क्या पुट कर दिया, 3 प्लस 2 न्यू इंटू 3, लेकिन मेरे भाई a1 तो 0 था, सो दैट मीन्स a3 इज 0, राइट। इसी तरह से जब 5 पुट करूंगा n को, व्हेन आई सब्स्टिट्यूट सिमिलरली व्हेन n इज इक्वल्स टू 5, जब पुट करूंगा व्हाट वी हैव, व्हेन n को 5 पुट करूंगा तो वी हैव a5 and I am going to get this a5 in terms of a3, so that means मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये क्या होगा मेरे पास 5 प्लस 2 न्यू इंटू 5, के जितने भी ओड कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं, corresponding to what, when n equals to 3, when n equals to 5, when n equals to 7 and so what we got is, we got that so this implies, मेरे को अब तक क्या मुझे पता चला, a1 is equals to a3 is equals to a5 and it goes on like this, these all expressions are indeed 0 corresponding to the odd values। तो यानी सिर्फ पॉसिबिलिटी नॉन जीरोज की क्या रहेगी मेरे पास, नॉन जीरोज की जो सॉरी एकमात्र पॉसिबिलिटी रह गई है, तो मेरे पास क्या हो गया कि सिर्फ जो इवन कोफिशिएंट्स है, या मैं क्या कह सकता हूं यहां पे मैंने क्या कंक्लूड किया, ऑल ओड कोफिशिएंट्स आर 0, ऑल ओड कोफिशिएंट्स आर 0, ठीक बात। अब मैं क्या करता हूं, तो यानी अब मेरे को क्या करना है, टू गेट द इवन कोफिशिएंट्स, अब यानी अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास वैल्यूज कौन सी हैं, नाउ फॉर इवन वैल्यूज के लिए, यानी कि n जब 2 है 4 है 6 है 8 है, मेरे पास रिलेशन क्या है, आई हैव दिस रिलेशन an किसके बराबर है, an इज इक्वल्स टू -1 अपॉन n प्लस 2 न्यू इंटू n टाइम्स a n माइनस 2, इसको मैंने जस्ट बाहर लिख लिया ऊपर की बजाय राइट। तो अब इवन कोफिशिएंट्स ही मेरे सिर्फ नॉन जीरो है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, और मैं क्या इसको लिख सकता हूं, वी पुट, ताकि मैं सिर्फ इवन वैल्यूज ही रहे मेरी एक्सप्रेशन में, आई विल पुट n इक्वल्स टू 2k, राइट। अब जब मेरा n 2 4 6 था तो मेरा k कहां से रन करेगा, नाउ दिस k रन्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो राइट। सो मेरे पास देयरफॉर मेरे पास एक्सप्रेशन क्या हो गया, a2k, सारे के सारे जो मेरे इवन कोफिशिएंट्स है मैं एक ही बारी में निकाल सकूंगा, a2k इज नथिंग एल्स बट माइनस a n क्या हो गया 2k माइनस 2 डिवाइडेड बाय, जहां पे भी n है उसको 2k से रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2k प्लस 2 न्यू इंटू 2k, I can write it in this way, right? या मैं क्या कर दूं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, -a 2k माइनस 2, कुछ पैटर्न सा बनाने के लिए 2 यहां से कॉमन ले लूं और 2 यहां से, तो यानी क्या हो गया 2 की पावर 2 k प्लस न्यू इंटू k। I can write down this also in this way, where this k varies from, k कहां से कहां रन कर रहा है मेरा 1 2 3 and it goes on like this। So अब कुछ कोफिशिएंट्स मैं निकाल के देखता हूं। So now when k is equals to 1, so what we are going to get is
When k is equals to 1, I am going to get this value a2 and the value of this a2 will be, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं वैल्यूज प्लग कर रहा हूँ, कुछ मेरे से गलत हो जाए तो 1/2 raised to the power 2 1 प्लस न्यू, पैटर्न बन जाएगा 1 2 जब मैं वैल्यूज निकाल लूंगा, इंटू 1 टाइम्स ए नोट। अब देखो ए नोट हमने माना था नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर ए नोट जीरो हो जाता तो सारे के सारे कोएफिशिएंट्स ही जीरो आ जाने वाले थे। नाउ आई विल पुट k इक्वल्स टू 2, so now I'll put k equals to 2, so what we'll get is a4 what it will be, expression will be -1 over, अब देखो वैल्यूज प्लग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रख के करने वाला काम है, 2 raised to the power 2 प्लस न्यू इंटू 2 a2, राइट, और a2 की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूं, सो व्हाट इट विल बी -1 1/2 raised to the power 2 प्लस न्यू टाइम्स 2। फिर अब a2 की वैल्यू प्लॉट कर देता हूं, फिर से एक -1 आ गया पैटर्न देखते रहो, फिर 1 से 2 की पावर 2 आ गया, 1 प्लस न्यू इंटू 1 टाइम्स ए नोट, राइट, एंड विल पुटिंग डाउन द वैल्यूज ऑन द सेम लाइंस, के की वैल्यू करता चला जाऊंगा, तो यानी मेरे पास a2 के क्या आ गया, अगर मैं पैटर्न देख के लिखूं तो a2 के इज नथिंग एल्स बट -1 raised to the power k 1/2 की पावर 2 एक आई, 2 आ गई जब k को 2 पुट किया, तो जब 2 के पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 raised to the power 2k, k टाइम्स इंटू k फैक्टोरियल, राइट, k मेरे पास क्या हो जाएगा 1 ये रहा, 2 ये रहा, अगली बार डालूंगा तो एक 3 टर्म एंड सो वी हैव k फैक्टोरियल, and what we'll get is we'll get 1 plus new, अगली टर्म 2 plus new, अगली टर्म, and it is this product is going on up to k plus new, यहाँ तक चली जाएगी, और what we have times a naught where this k varies from 1 2 3 and it goes on like this, right? So now we have obtained all the coefficients of our equation, and when we'll substitute these coefficients back into that expression जो हमने solution के लिए मानना था, we can obtain the solution of Bessel's equation। लेकिन अब देखो, अब मैंने कहा था कि चॉइस जो है न्यू की, न्यू कैसा है, रियल है, नॉन निगेटिव है, तो न्यू के ऊपर डिपेंड करता है तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं नाउ, अब जो न्यू है मैं इसको कुछ वैल्यूज के लिए निकालता हूं, बेसल फंक्शंस निकालता हूं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ आई विल कंसीडर द केस, अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं बेसल्स फंक्शन। बेसिकली निकाल हम सॉल्यूशन ही रहे हैं, उसमें ये एक हमारे पास पड़ा हुआ आ गया है जहां पे हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, बेसल्स फंक्शन, एंड विल डिनोट दीज बेसल्स फंक्शंस बाय jnx। क्या हम इनको किससे डिनोट करते हैं, बाय jnx, राइट। सो अब मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस बेसल्स फंक्शन jnx फॉर न्यू इक्वल्स टू n, यानी कि जो मेरे पास वैल्यू था उसको मैंने कोई रियल वैल्यूज देनी शुरू कर दी हैं, राइट, न्यू को n सब्सटीट्यूट कर दूंगा, कर हम यही सॉल्यूशन रहे हैं, बस अब हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जहां हम इसको डाल सकते हैं। सो अब अगर मैं देखूं, अगर मैं न्यू को n कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, दिस कोएफिशिएंट्स विल बी, आई कैन राइट इट डाउन एज द कोएफिशिएंट्स विल बी a2k, आई कैन राइट डाउन दिस a2k एज -1 raised to the power k into a naught, and this whole expression is divided by 2 raised to the power 2k, कुछ भी नहीं कर रहे, बस न्यू को n से रिप्लेस कर दिया और कोई फर्क नहीं है, राइट। वी हैव फैक्टोरियल k ओवर हियर, वी हैव व्हाट वी हैव 1 plus n 2 plus n and it goes on like this, वी हैव k plus n। भाई ऐसी तो हो जाएगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, बस न्यू को हमने n से लिख दिया है, क्योंकि हम बेसल फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं ऑफ ऑर्डर n, या मैं कह दूं बेसल फंक्शंस ऑफ ऑर्डर न्यू, ठीक बात।
तो एक ही बात है, तो हम जस्ट जो हम पढ़ते आए हैं उसके लिए कर रहे हैं. अब हियर व्हाट इज दिस ए नोट? हियर ए नोट इज, ओहो, हियर ए नोट इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट. अब यहां पे हो क्या रहा है? वेयर ए नोट इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट. सो वो कहता है व्हाई डोंट विल चूज दिस टू बी, मैं इसको खुद चूज कर रहा हूं ऐसे. कैसे? 1/2 raised to the power n into n factorial, right? We choose it in this way. We choose it in this way. We choose it in this way. And can we do that? Of course, yes. Why? Because this A naught is arbitrary. We can take any value of this A naught, right? We can choose it in this way. So in that case, what will be this A2K? So now I'll plug in the value of this A naught. So this A2K will become, oh shit, this A2K will become, what I should do? This will become, इसको बंद करके दोबारा ओपन करूं क्या? ये हैंग हो गया है. एक बार मैं इसको बंद करके दोबारा करता हूं. आई होप के स्क्रीन विजिबल है, क्लियरली बता सकते हो? कोई एक जना बता दो यार. सर विजिबल है. हाँ ठीक है, तो मैं एक बार के लिए दोबारा लिख देता हूँ जो मैं मिस कर गया था टर्म. हम लोग अच्छा पहले से ऊपर कर लूँ, नहीं फिर हैंग हो जाएगा. बस ख़त्म होने वाला है जो हमारे पास है ये यूनिट जो है. सो मैं बात कर रहा था Bessel's function Jnx for न्यू इक्वल्स टू एन, राइट. सो जब मैंने पास क्या किया, न्यू को एन पुट कर दिया, तो जस्ट अभी मैं पहले लिख लेता हूँ एंड देन विल कम टू दैट पॉइंट. सो मेरा A2K क्या हो जाएगा? द कोफिशिएंट्स जो मैं ऑब्टेन कर रहा था, द कोफिशिएंट विल बी -1 raised to the power k times A naught. दिस A naught इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट जिसको हम बाद में कोई सुटेबल वैल्यू प्लग इन कर देंगे. सो ये क्या होगा मेरे पास? 2 की पावर 2k इंटू फैक्टोरियल k 1 प्लस n, it will be 2 plus n, and it goes on like that. It goes on up to k plus n, right? And this k runs from 1 2 and so on. Now अब यहाँ पे था क्या मेरे पास? Now here A naught is an arbitrary constant, is an arbitrary constant, right? तो हम क्या करेंगे? We choose A naught, we choose A naught as, मैंने इसको क्या चूज कर लिया? 1/2 raised to the power n into n factorial, right? तो in that case मेरे पास ये क्या बन जाएगा? A2K will be, in that case this A2K will become, in that case A2K will become -1 raised to the power k, और बस मैं अब सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ इसके बाद. -1 raised to the power k 2 raised to the power, अब देखो है क्या? 1/2 raised to the power n into n factorial और आ गया मेरे पास. और तो मैं क्या कर दूंगा? अच्छा चलो मैं एक बार के लिए इसको पूरा ही लिख लेता हूँ. मेरे पास क्या हो गया? 2 की पावर 2k, और मेरे पास क्या हो गया? 2 raised to the power n इंटू n फैक्टोरियल और लिख दिया मैंने A नोट को जो मानना है. और मेरे पास क्या था? k फैक्टोरियल. मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ k फैक्टोरियल की, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे को इसको कंबाइन करना है. अब अगली टर्म क्या है मेरी? n+1. अगली टर्म क्या है? n+2, एंड इट गोज ऑन लाइक अप टू n+k, राइट. तो अब अगर एक बार के लिए मैं देखूँ तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा मेरे पास? -1 raised to the power k, 2 की पावर 2k ये पड़े हुए,
2 की पावर n ये पड़े हुए, तो क्या हो गया 2 की पावर 2k प्लस n, 2 की पावर 2k प्लस n इंटू फैक्टोरियल k, राइट। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया, फैक्टोरियल k। अब ये मेरे पास आ गया n फैक्टोरियल, ये रहे n प्लस 1 टर्म, n प्लस 2 टर्म्स, n प्लस k टर्म्स, so what I can write it as, I can write it as factorial n plus k, right? So this expression is here equals to this one, where this k runs from 1, 2, 3 and so on. So therefore मैं कहता हूं मेरे को एक सॉल्यूशन मिल गया। मैंने कहा था कि y मैंने क्या माना हुआ था, दो सॉल्यूशन था, मैंने एज्यूम किया हुआ था y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर m summation n runs from 0 to infinite, n runs from 0 to infinite a n x raised to the power n, a n x raised to the power n, right? और ये अब हमने क्या किया, अब हम पहला एक सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो नाउ वी टुक, हमने क्या लिया था जब ये कोएफिशिएंट्स निकाले, m को m1 इक्वल्स टू न्यू ले लिया था एंड न्यू इक्वल्स टू n, तो यानी मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज जो अभी मैंने ऑब्टेन किया है वो क्या हो गया, मेरे पास जो सॉल्यूशन है, हमने क्या चूज किया था अभी तक, देखो हमने लिया था m इक्वल्स टू m1 जो पहला रूट था उसको न्यू कर दिया था, एंड न्यू को क्या लिया हुआ था, न्यू को n चूज किया हुआ था, राइट। तो इन वैल्यूज के साथ मेरे पास ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू द सॉल्यूशन, y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर m को क्या पुट किया न्यू और न्यू को n, तो मेरे पास क्या हो गया x रेज टू द पावर n समेशन n रन्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, ओ सॉरी n यहां पुट कर रखा है ना, तो मैं यहां k ले लेता हूं, समेशन मेरा किस पे चला जाएगा, k पे, क्योंकि n को 2k पुट कर दिया था ना, जो मेरा n था उसको मैंने क्या पुट कर दिया था, 2k पुट कर दिया था इवन क्वेश्चंस के लिए। तो x रेज़ टू पावर n समेशन k रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, व्हाट इट विल बी, it will become minus 1 raised to the power k divided by 2k, 2 की पावर 2k plus n into factorial k plus n, right? ये सारा कोफिशिएंट एज इट इज रख दिया, ans जो 2k into x raised to the power n, और n को क्या रख दिया 2k, so this is x raised to the power 2k, right? Where this k runs from 1, 2, 3 and it goes on like this. तो ये जो मैंने y अटेन करा है एक सॉल्यूशन, दिस फंक्शन इज इंडीड नोन एज द बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, दिस इज नोन एज द बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब मैं कहना चाह रहा हूं क्या मैंने सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया, द आंसर इज नो, हाँ एक ऑब्टेन कर लिया। सो दिस एक्सप्रेशन, ये जो मैंने ऑब्टेन किया है, दिस इंडीड इज नोन एज द बेसल्स फंक्शन, दिस इज नोन एज द बेसल्स फंक्शन of the first kind, Bessel's function of the first kind of order n, right? अब अगर एक बार मैं देखूं इसके लिए, तो ठीक है ये सब कुछ मेरा एक्सप्रेशन जो है सब कुछ ठीक चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो न्यू को मैंने क्या लिया हुआ है, न्यू कैसा है मेरे पास, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है बट अपने को समझने की चीज़ है। अब मैंने क्या लिया हुआ है, न्यू को n माना हुआ है, और न्यू मेरे पास कैसे हैं, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स हैं। अब अगर मैं एक बार के लिए देखूं जो मेरे नॉन निगेटिव रियल नंबर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे पास, एज लॉन्ग एज जब तक n इंटीजर नहीं है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर n इंटीजर हो गया तो, यानी कि अब न्यू कैसा है मेरे पास, अगर मैं रियल लाइन के ऊपर बात करूं तो न्यू क्या वैल्यूज ले सकता है मेरे पास, न्यू जो है नॉन निगेटिव है, यानी कि यहां लाई कर रहा है, ठीक बात, कोई भी नॉन निगेटिव वैल्यूज है। अब जब ये राइट हैंड साइड में जा रहा है तो ये क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, अभी कोई भी वैल्यू ले सकता है, इंटीजर वैल्यू भी ले सकता है 1, इंटीजर वैल्यू 2 भी ले सकता है, इंटीजर वैल्यू 3 भी ले सकता है, और सारी। मैं क्या क्लेम कर रहा हूं, मैं क्लेम कर रहा हूं अगर ये इंटीजर वैल्यू ना ले, यानी कि इंटीजर वैल्यूज को छोड़ दे और बाकी कोई भी वैल्यू ले रहा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, और अगर ये इंटीजर वैल्यू ले लेगा तो मेरे पास होने वाली है प्रॉब्लम। देखते हैं कैसे। सो नाउ इफ न्यू वर एन इंटीजर, अगर न्यू मेरा इंटीजर हो जाता,
नाउ चलो मैं इसको लिखता हूँ थोड़ा सा तुम लोगों के लिए, ताकि अगर बाद में तुम लोग समझो तो समझ में आए। वो कहता है कि अब प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, न्यू को मैंने कुछ नहीं कहा अभी तक कि वो इंटीजर है कि कोई भी वैल्यू ले सकता है ओवर द राइट हैंड साइड, कि पॉजिटिव साइड में कोई भी वैल्यू वो ले सकता है। अगर इंटीजर है तो क्या प्रॉब्लम है, हम देखना चाहते हैं उसको, और अगर इंटीजर नहीं है तो चीजें स्मूथ कैसे हैं। तो वो कहता है इफ न्यू वर एन इंटीजर, इफ न्यू वर एन इंटीजर, अगर वो इंटीजर होता, देन द एवर ग्रोइंग प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट एवर ग्रोइंग जो है, अगर मैं एक बार के लिए देखूं जो मेरा एक्सप्रेशन आ रहा है, देन द एवर ग्रोइंग प्रोडक्ट इज, जो क्या है मेरे पास, न्यू प्लस के। भैया बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे मैं के को समेशन में बढ़ाता चला जाऊंगा ये प्रोडक्ट इंक्रीज होती चली जाएगी। ये क्या हो जाएगी, आई कैन राइट आउट, ये जो मेरा नीचे वाला एक्सप्रेशन था ये बेसिकली वही है, न्यू प्लस वन, राइट, कुड बी सिंप्लीफाइड इनटू, could be simplified into closed form as factorial new over factorial new plus k. But since new is not an integer, but since न्यू इज, भाई जरूरी थोड़ी इंटीजर हो, और कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी नॉन निगेटिव रियल वैल्यू वो ले सकता है, बट सिंस इज न्यू इज नॉट एन इंटीजर, we seek to accomplish such simplification, अभी समझ में आएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं लिख दूं जो मैं कहना चाह रहा हूं। वी सीक टू अकम्प्लिश सच सिंप्लीफिकेशन बाय मीन्स ऑफ जनरलाइज्ड फैक्टोरियल फंक्शन, known as गामा फंक्शन, द गामा फंक्शन। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, गामा फंक्शन। तो यानी हम क्या कर रहे हैं कि भी फैक्ट जो हमारे पास क्या है कि चलो मैं भी कुछ कैलकुलेशंस करता हूं तो अपने को थोड़ा सा समझ में आएगा। इससे पहले कि मैं बात करूं आखिर मेरे पास प्रॉब्लम क्या होने वाली है, मैं क्या करता हूं, एक बार ना आप लोगों से गामा फंक्शन के बारे में डिस्कस करता हूं। अगर आई होप कि सभी लोगों ने गामा फंक्शन कभी ना कभी जीवन में पढ़ा होगा, मैं उसमें उसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं और मेरे लिए उतना ही सफिशिएंट है। तो मैं क्या करूं, उसको रफ में लिख लेता हूं ब्लू में, राइट। तो वट एवर आई एम राइटिंग डाउन इन ब्लू इज बेसिकली द रफ वर्क, राइट। तो गामा फंक्शन जो होता है मेरे पास कैसा होता है, आई विल डिफाइन दिस गामा जेड एज, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये हमें वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, शायद फर्स्ट सेमेस्टर में बीटा गामा फंक्शन में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें तो सिर्फ इसके ग्राफ को देखना है और हमें एक चीज छोटी सी समझनी है। सो दिस फंक्शन इज x रेज टू द पावर z माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस x dx। ये जो फंक्शन होता है दिस इज नोन एज द गामा फंक्शन, सो दैट द रियल पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। तो अगर मैं एक बार के लिए इस फंक्शन में दिखूं, इस फंक्शन का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, आखिर प्रॉब्लम क्या है न्यू के इंटीजर होने से, मैं वो एक बात देखना चाहता हूं। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और फिर आप लोगों से सवाल मैं पूछूंगा कि न्यू के इंटीजर होने से प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। सो नाउ आई विल आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो बहुत अच्छा सा ग्राफ है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव साइड में तो ये इस तरीके से चला जाएगा, राइट। लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो मैं इनको मार्क कर लेता हूं वैल्यूज को -1, और ये क्या है, इंटीजर वैल्यूज हैं, -1 -2 -3। थोड़ा सा ग्राफ मुझे ना ऊपर नीचे लिखे हुए के ऊपर बनाना पड़ेगा, तो आई होप यू कैन बोदर विद इट जो है, राइट। बट मैं ब्लू में बनाऊंगा तो अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसका ग्राफ कैसा है, -1 से 0 के बीच में इसका ग्राफ है मेरे भाइयों इस तरीके का, राइट। यानी सब कुछ अच्छा था,
प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, मैं रेड से मार्क कर लेता हूँ जहाँ प्रॉब्लम हुई। भाई 0 पे अनडिफाइंड है, -1 पे अनडिफाइंड है। मैं क्लेम कर रहा हूँ हर इंटीजर वैल्यू पे तो मेरे भाई ये डिफाइंड इच नहीं है। तो अब बाकी मैं इसके अब सारे के सारे ग्राफ पहले ड्रॉ कर देता हूँ। अगले में क्या होगा, जहाँ से ये शुरू हुआ था उससे ऊंचाई से फिर इस तरीके से चला जाएगा इसका ग्राफ, राइट। -2 पे डिफाइंड नहीं है, -1 पे डिफाइंड नहीं है। अगली बार फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे कुछ मतलब एग्जैक्टली ग्राफ नहीं है ऐसा जैसा मैं कर रहा हूँ, बट इसी तरह की शेप रहती है। फिर से -3 -2 पे डिफाइंड नहीं है, बाकी सारे में डिफाइंड है। और ऐसे ही फिर अगली बार यहाँ पे भी इसी तरीके से इसका ग्राफ हो जाएगा। यानी मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जब जब निगेटिव इंटीजर के ऊपर ये जा रहा है तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम का सबब बन रहा है गामा फंक्शन, राइट। तो एक तो गामा फंक्शन की ये प्रॉपर्टी मैंने याद कर ली अब के बाद। और दूसरी चीज, मुझे गामा फंक्शन के रिकरेंस रिलेशन से एक चीज और पता है मेरे भाई, और वो क्या है, वो मुझे ये बात पता है कि गामा फंक्शन जो है मेरे पास वो किसके बराबर होता है। एक प्रॉपर्टी है उसकी जो है मेरे पास, क्या कहते हैं उसको, हाँ, गामा ऑफ n+1 किसके बराबर होता है, गैमा ऑफ n+1 बराबर होता है n फैक्टोरियल के। अब मैं इन दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है अपनी कैलकुलेशन में करने जा रहा हूं। अब देखो कैसे, कि इंटीजर के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है, कि एक रूट मैंने निकाल लिया, मैंने उसको डिफाइन कर दिया बेसल्स फंक्शंस ऑफ द फर्स्ट। अरे यार क्यों हैंग हो गया, हाँ ठीक है, अभी आई होप ठीक हो गया। हाँ, अब मेरे पास क्या था, बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक बात। और साथ ही साथ मैंने ये कहा कि अच्छा चलो मैंने गामा और ये फंक्शन कर दिया। अब देखो हो क्या रहा है, मैंने तो m की एक वैल्यू m की न्यू पुट की और एक सॉल्यूशन ऑब्टेन करा। अब देखो होता क्या है, लेकिन अब रिकॉल करो, हमारे पास तो दो रूट थे। अब मैं रफ वर्क छोड़ के बाहर आ रहा हूं वापस। नाउ वी हैड टू रूट्स, और वो रूट्स क्या थे मेरे पास, m1 इक्वल्स टू न्यू एंड m1 इक्वल्स टू माइनस m1 इक्वल्स टू न्यू था और m1 इक्वल्स टू माइनस न्यू था। करस्पॉन्डिंग टू m1 इक्वल्स टू न्यू मैं ऑलरेडी एक सॉल्यूशन ऑब्टेन कर चुका हूं जिसको मैंने नाम क्या दे दिया, बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। और जो मेरा किसके बराबर आ गया, एक्स न्यू को एन पुट करके लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई कैन राइट इट डाउन इन दिस वे, के रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। वही फंक्शन फर्स्ट काइंड वाला जो है ना उसको ही एज इट इज मैं लिख रहा हूँ, इन्फिनिटी -1 रेज़ टू द पावर k एंड वी गॉट x रेज़ टू द पावर 2k, और मेरे पास क्या आ गया 2 रेज़ टू द पावर 2k। अब देखो थोड़ी सी मैनिपुलेशन करने वाला हूँ मैं, मुझे बताना आखिर मैंने किया क्या है, या चलो मैं लिखता ही हूँ, मैं उस चक्कर में पढ़ता ही नहीं। 2k प्लस न्यू फैक्टोरियल k प्लस न्यू था, ठीक बात। अब मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरे भाई, गामा फंक्शंस की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ इसको। गामा फंक्शंस क्या होते हैं, जनरलाइजेशन होती है किसकी, फैक्टोरियल्स की, राइट। सो मेरे पास ये एक्सप्रेशन था, तो वो कहता कि भाई इसको तो मैं ऐसे लिख सकता था, न्यू बताना कि ऐसे नहीं लिख सकता, तो कोई गलती हो तो बताना। 0 टू इनफाइनाइट -1 रेज़ टू द पावर k x रेज़ टू द पावर 2k एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2k प्लस न्यू। कोई चेंज ही नहीं करा मैंने, राइट। मैं सिर्फ कहाँ चेंज करने जा रहा हूँ, अब करने जा रहा हूँ मैं फैक्टोरियल k को एज इट इज रखा। अब मैं किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाला हूँ, गैमा फंक्शन की दिस प्रॉपर्टी का, राइट। अब भाई k प्लस न्यू का फैक्टोरियल, भाई n का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, गामा n+1, तो k प्लस न्यू का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, द गैमा फंक्शन कहाँ पे, k प्लस न्यू किस पे हो जाएगा, k प्लस न्यू प्लस 1, एज सिंपल एज दैट, राइट। और जिसको हमने कैसे डिफाइन करा है अब तक, वी कॉल्ड इट एज द बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर न्यू। वहां न्यू को एन रख रखा था, एक ही बात है। अब वो कहता है कि भाई दूसरे रूट ने कोई पाप थोड़ी कर दिया, भाई दूसरे रूट की भी तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो कह रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक बात। अब जर्नल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए तो क्या है, मैंने एक सॉल्यूशन ऑब्टेन किया, मुझे तो दो सॉल्यूशन चाहिए ताकि मैं उसको c1 y1 प्लस c2 y2 की फॉर्म में लिख सकूं। नाउ टू ऑब्टेन अ जर्नल सॉल्यूशन
we need another linearly independent solution, right? So in case, अब ये important है, in case nu is not an integer, nu is not an integer, तो क्वेश्चन खत्म हो गया. In case nu is not an integer, we can obtain another solution simply by replacing nu to minus nu, right? to get क्यों? क्योंकि अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन को देखूं, वहां क्या आ रहा है, न्यू स्क्वायर आ रहा है, यानी कि मैं न्यू डाल लूं चाहे माइनस न्यू डाल लूं, दोनों के दोनों उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे. तो यानी मैं ऑब्टेन क्या कर सकता हूं, दूसरा सॉल्यूशन आई कैन. लेकिन कब? इफ न्यू इज नॉट एन इंटीजर, तो मैं दूसरा सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं, j माइनस न्यू इंटू एक्स इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर माइनस न्यू. मैं जल्दी से इसको लिख देता हूं, सिर्फ उसको रिप्लेस ही करना है. k रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी and minus 1 raised to the power k, and what we have, x raised to the power 2k. जहाँ पे भी न्यू होगा उसको माइनस न्यू से बस रिप्लेस कर देंगे. माइनस 1 raised to the power k, x raised to the power 2k, गैमा फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, k माइनस न्यू प्लस 1. ठीक बात. एंड ये दोनों आपस में कैसे होंगे, when nu is not an integer, they are linearly independent, right? Suppose I'll name this function as, say like I'll call it as, क्या लिखूं मैं इसको, say like I'll call as a and I'll call it as b, right? Now if nu is not an integer, then the general solution will be, then the general solution of Bessel's equation is y is equals to c1 j nu x plus c2 j minus nu x, right? And this will be our answer. अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इफ न्यू इज एन इंटीजर, अगर न्यू इंटीजर हो जाए, एक सॉल्यूशन तो मेरा ये काम कर देगा, कौन से वाला, a. मैं क्लेम कर रहा हूं एक सॉल्यूशन तो मेरे पास यही काम कर देगा, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन काम नहीं करेगा. मुझे बताओगे क्यों? हिंट लाइज इन दिस ग्राफ के. अब अगर मैं एक बार के लिए देखो प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ इंटीजर होने में न्यू के, कि अगर न्यू मेरे पास इंटीजर वैल्यू ले लेगा तो मेरे साथ आखिरी में प्रॉब्लम क्या आने वाली है मेरे भाई, कि एज लॉन्ग एज दिस ए इज कंसर्न, द फर्स्ट सॉल्यूशन विच वी हैव ऑब्टेन्ड, नो प्रॉब्लम. ए चाहे 5 हो 7 हो कुछ भी हो, ये सारी की सारी टर्म गामा की आर्गुमेंट क्या रहने वाली है, दिस टर्म विल रिमेन पॉजिटिव, राइट? और जब ये पॉजिटिव रहेगी तो यहां तो सारे के अंदर जो है फंक्शन जो है वेरी वेल डिफाइंड है सारे के अंदर. लेकिन अगर मैं न्यू को ले लेता हूं इंटीजर वैल्यू, सपोज मैंने 5 ले ली, सपोज मैंने न्यू की वैल्यू ले ली 5 वैल्यू ले ली. भाई न्यू कैसा है, नॉन निगेटिव है और रियल है, यानी कि वो कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है. यहां से सपोज करो मैंने कोई भी इंटीजर वैल्यू चूज कर ली, से 3 चूज कर ली, 5 कर ली, 7 कर ली, 20 कर ली, 25 कर ली, तो मेरे साथ क्या है, पहले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. गामा फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज, लाइक 1 प्लस न्यू प्लस 2, वो 1 प्लस न्यू प्लस के. जो मेरा पेन कहां गया, एक मिनट मेरा मार्कर कैसे बंद हो गया है. एक मिनट देना जरा, मैं इसको रिकनेक्ट कर दूं अपने पेन को. हाँ आ गया, ठीक है. तो गामा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी वाले के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि अगर मेरा न्यू हो गया निगेटिव, वो सॉरी पॉजिटिव इंटीजर कोई वैल्यूज अटेन कर लेता है, तो दिस गामा फंक्शन कैन टेक निगेटिव वैल्यूज, राइट?
और ये कैसा हो जाएगा, मान लो मैंने -5 ले लिया, जब k को 0 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या होगी, एक बार के लिए मैं चलो रफ में लिखता हूं। सपोज मैंने न्यू की वैल्यू ले ली 5, राइट। जब समेशन में मैं वैल्यूज डाल लूंगा k 0, तो मेरे गामा की वैल्यू क्या आएगी, गामा 0 -5 + 1, राइट। फिर अगले टर्म में गामा की वैल्यू क्या आएगी, 1 -5 + 1, एंड अगले में गामा 2 -5 + 1 एंड सो। तो यानी गामा की वैल्यूज कहां चली गई, -5 + 1 -4 पे। यहां पे गामा की वैल्यू कहां पे चली गई मेरे भाई, 1 + 2 3 पे, -3 पे। यहां पे गामा की वैल्यू कहां चली गई, -2 पे। यानी कि कुछ टर्म मेरी ऐसी हो जाएंगी अगर न्यू इंटीजर हो गया, जो कहां चली जाएंगी, इन निगेटिव इंटीजर वैल्यूज पे। मेरा मार्कर कहां गया बार बार, किधर गया मेरा पेन, एक मिनट बेटा जरा मैं इसको, ये मेरी वायर जो है ना तंग कर रही है, एक मिनट बस, हो गया शायद काम। हाँ, सो मेरे पास वैल्यूज कहाँ चली गई, जब मैंने k की कुछ वैल्यूज पुट करी निगेटिव इंटीजर्स पे, और निगेटिव इंटीजर तो क्या थे मेरे भाई, खतरे वाला पॉइंट थे। यहाँ पे तो डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पे भी डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे भी डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे भी डिफाइंड नहीं है। यानी कि कुछ वैल्यूज मेरी कहाँ चली जाएंगी, निगेटिव पे, जो वैल्यूज मेरी डिफाइंड ही नहीं है। यानी कि जो न्यू है उसका इंटीजर होना मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, कहाँ पे, दूसरा सॉल्यूशन निकालने में। अगर वो इंटीजर नहीं है, अगर न्यू मेरा इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन ये रहा, दूसरा सॉल्यूशन ये रहा, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आई कैन फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इफ this new is an integer? So in that case what we need to do is we need to find out some other way of finding out the solution, and the other method is एक सॉल्यूशन अगर मुझे पता हो तो दूसरा सॉल्यूशन मैं कैसे निकाल सकता हूं, बाय मींस ऑफ द मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। तो वही जो है मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाला हूँ जो है, ठीक बात। तो चलो देखते हैं, जब न्यू इंटीजर होगा तो देन हाउ आई कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन, कि मैं कैसे इसका सॉल्यूशन जो है निकाल पाऊंगा जो है। तो एक मिनट के लिए ज़रा मैं इसको बंद करके दोबारा चलाता हूँ, ये शायद हैंग कर गया है। वन नोट, आई विल शेयर अ विंडो, आदित्य शेयर, राइट। तो यानी कि अगर एज लॉन्ग एज न्यू इज नॉट एन इंटीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी हैव ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। So now what will happen if new is an integer? So now I'll consider that case separately, right? Now case when या मैं इसको, where is my eraser? Now I'll write it down when I'll explicitly write down when मेरे पास क्या हो जाएगा, new is an integer, राइट। जब न्यू इंटीजर होगा तो पहली टर्म में तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक सॉल्यूशन में जो मेरा क्या है, बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको मैंने किससे डिनोट किया है, तो मेरे पास y = y1, तो मेरे पास नोन है, वो क्या है, j न्यू x, ये तो मुझे नोन ही है, बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड जो मेरे पास होने वाला है। क्या प्रॉब्लम हो इसको Bessel function of first kind, right, j nu x, right. So now we'll find out the another solution. अब हम दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे भाई, मुझे दूसरा सॉल्यूशन निकालना है जो कि इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो मैं क्या मान लूंगा, आई विल एज्यूम दैट y = u टाइम्स j nu x। बस ये खत्म होने वाला है, लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा यूनिट का जो है, y = u j nu x, देन j nu x मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, राइट। तो मेरे पास देन क्या हो जाएगा, y dash x will be y dash of x will be equals to प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, क्या हो जाएगा, u dash j nu x, राइट।
प्लस u टाइम्स j न्यू डैश ऑफ x एंड y डबल डैश क्या हो जाएगा, एंड y डबल डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, इसका फिर से डेरिवेटिव ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, u डबल डैश इंटू j न्यू प्लस u डैश j न्यू डैश, और ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, सेकंड से भी एक टर्म आ जाने वाली है, प्लस u j न्यू का डबल डैश, राइट. ये obviously they are functions of x even if I am writing it down. So now substituting these values into the Bessel's equation. Now substituting the values in Bessel's equation. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जब वैल्यूज को बेसल्स इक्वेशन में डाल लूंगा तो मेरे पास क्या होती है, बेसल एक्स स्क्वेयर इंटू वाई डबल डैश. सो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई डबल डैश. वाई डबल डैश इज यू डबल डैश जे न्यू, यू डबल डैश जे न्यू प्लस 2 यू डैश जे न्यू डैश प्लस यू टाइम्स जे न्यू डबल डैश, राइट, प्लस x times y dash. X times y dash means x into u dash j new plus u j new dash plus x square minus new square, x square minus new square into u times j new equals to 0. So now I am rearranging the term. So what does this implies? This implies new सॉरी माफ करना, दिस इज यू कॉमन ले लिया मैंने. कुछ टर्म्स जो है जो मैं कॉमन ले सकता हूँ वो मैं लिख लेता हूँ. तो मेरे पास क्या आ गई, देखो, एक्स स्क्वेयर जे न्यू डबल डैश, एक्स स्क्वेयर जे न्यू डबल डैश प्लस एक्स जे न्यू डैश, राइट, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस न्यू स्क्वेयर जे न्यू, राइट. अब बची हुई टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ. मेरे पास क्या आ गया, प्लस एक्स स्क्वेयर यू डबल डैश जे न्यू एक्स प्लस 2x स्क्वेयर यू डैश जे न्यू डैश प्लस एक्स यू डैश जे न्यू इक्वल्स टू 0. अब पहला एक्सप्रेशन किसको जा रहा है, जीरो को. वाई? बिकॉज जे न्यू की वैल्यू जब हमारे पास कैसी है कि ये पहले वाला तो सोल्यूशन है ही है, दिस इक्वल्स टू 0. वाई? बिकॉज जे न्यू एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन. by j nu x, j nu is a solution of Bessel's equation. एक सॉल्यूशन तो हमें पता ही है, तो यानी मेरा ये एक्सप्रेशन किसको चला गया, दिस एक्सप्रेशन गोज टू 0, राइट. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज, अब मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके टर्म्स की लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा समय बच जाएगा मेरा, मैं इसको खत्म कर पाऊं जल्दी से. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद दिस इक्वेशन. सो आई कैन रीअरेंज, आई एम नाउ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन में क्या, अब ये तो मेरा पहला टर्म तो सारी 0 को चली गई है. सो अगली टर्म को मैंने क्या किया, थ्रू आउट डिवाइड कर दिया बाय, ये मेरे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन बचा था, आई हैव डिवाइडेड इट बाय एक्स स्क्वेयर यू डैश एंड जे न्यू एक्स, इससे डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स, राइट. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज, वी आर लेफ्ट विद यू डबल डैश ओवर यू डैश, राइट, प्लस 2 खत्म होने वाला है, बस एक इंटीग्रेशन करनी है एंड वी आर डन विद दिस वन, जे न्यू डैश एक्स अपॉन जे न्यू plus 1 over x. This expression equals to 0. Now why don't I integrate it both the sides? So when I am integrating it, now integrating both sides. अब जब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बचा ही कुछ नहीं इसके अंदर जो है. नाउ लेट अस इंटीग्रेट. तो जब इसको इंटीग्रेट किया मैंने तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया दिस इम्प्लाइज, मेरे पास आया log of u dash plus 2 log j nu x, 2 log j nu x plus log of x equals to log of c1, right. So now I am collecting all these terms, सारी terms को अगर मैं collect कर लूँ तो मेरे पास क्या मिल गया, or I can write down this expression as this u dash
जे न्यू का स्क्वायर ऑफ x इंटू एक्स, मैं ये log x को उधर लिख लिया ताकि ऐसा ना लगे फंक्शन है, इज इक्वल्स टू c1. So what does this implies? This implies this small u dash is nothing else but c1 divided by x into j nu का स्क्वायर. ठीक बात, u dash किसके बराबर आ गया? x into j nu into this one. So what does this implies? मुझे u ही तो निकालना था. जैसे ही मैं u निकाल लूंगा, I will plug that value of u into इतने to obtain the second linearly independent solution. Right? So what we'll get? This implies this u is nothing else but c1 times integral dx over x, और मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म, j nu square into x. Right? c1 to this one plus c2. तो जैसे ही मैंने obtain करा u, so what does this implies? This implies the second linearly independent solution is u times j nu is nothing else but, अब मैं उसको लिखने जा रहा हूं, ये second independent solution मुझे मिल गया है. This is c1 integral dx divided by x into j nu का square x plus c2 times j nu x. Right? So this is the second linearly independent solution. What we'll got? We'll name it as y2. इसको मैंने क्या नाम दे दिया? I will name it as y2. Right? अब ये क्या हो गया मेरे पास? अगर मैं इसको देखूं, so now this expression जो मेरे पास अंदर expression आया कौन सा? अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं थोड़ा सा, और हमारा काम खत्म हो गया है, बस ये एक छोटा सा और लिख दूं मैं. So this expression is equals to, अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या बन जाएगा? c1 times j nu x, ब्रैकेट को c1 times j nu x इंटीग्रल dx अपॉन x इंटू j nu स्क्वेयर x, राइट, प्लस c2 टाइम्स j nu x, राइट. सो ये क्या मिला मुझे? द जर्नल सॉल्यूशन, क्योंकि मैं जब इसमें c2 ऐड करूंगा तो c1 c2 ही ऐड हो जाएंगे, बेसिकली j nu x तो एक सॉल्यूशन है ही. So this expression is known as the Bessel's function of second kind. This is known as the Bessel's function of second kind. Right? And this indeed is the second linearly independent solution of Bessel's equation when nu is an integer. तो इसी के साथ जो है हमने आज क्या देखा है, हमारे पास हमने अपनी बेसल इक्वेशंस का जो है सॉल्यूशन निकाल लिया है, राइट. एंड विद दिस विल कंक्लूड दिस यूनिट.